خبر دیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے عمان سے تعلق رکھنے والے بائکرز کی وفد نے ملاقات کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملاقات میں اہم شخصیات بھی شامل تھیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم خان کا کہنا ہے کہ عمانی بائکرز کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان عوامی، ثقافتی اور سیاحتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ اور ایک پرامن ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر اسلامی ممالک کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے لیے عالمی فورمز پر آواز اٹھائی۔ انڈیا کی طرف سے جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور نئی جنگی تاریخ رقم کی۔ عمانی وفد نے کہا کہ پاکستانیوں کی طرف سے ملنے والی محبت کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ دورے کا مقصد اتحاد، دوستی اور علاقائی تعاون کے پیغام کو تقویت دینا ہے۔ رخ کریں گے حیدرآباد کا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر حیدرآباد کے شہری بھی پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ بلا جواز ہے۔ غریب عوام ویسے ہی مہنگائی سے تنگ ہے، اوپر سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آ جائے گا۔ حیدرآباد سے نمائندہ 5 نیوز جبران خان کی رپورٹ دیکھیے۔ 8 روپے اضافہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس کے اثرات ہر چیز پہ جو ہے آئیں گے آپ کے۔ آپ اپنے اداروں کو درست کیجیے، جو آپ کے خسارے کے ادارے ہیں آپ انہیں کھوجیے، اپنے اخراجات کو کم کیجیے۔ آپ اس کے جو ہے اپنے اخراجات کو، اپنے دوسرے اداروں کو بوجھ برداشت کر کے آپ پیٹرول کے اوپر، عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، تو کسی طور پہ بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بہت مہنگا کر دیا ہے پیٹرول، پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے، لوگ کھانے کے لیے پریشان ہیں، اوپر سے یہ اب اس کی وجہ سے کرایہ بھی بڑھے گی، ہر چیز غریب بندہ تو ہر طرف سے جو ہے نا پریشانی ہے، اتنی مہنگائی ہے، پیٹرول بڑھایا ہے۔ دوسری چیزیں عوام بیچاری پس گئی ہے روزانہ کے بنیاد پہ۔ آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہے کہ بندہ پیٹرول بھروائے، گھر کے اخراجات پورا کرے، بچوں کی تعلیم پورا کرے، یہاں اور کیا کرے۔ یہاں پر سروائیول اتنا مشکل ہو گیا ہے تو بندہ پیٹرول کہاں سے عوام کے ساتھ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ پر بھی اضافہ ہو، بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، پیٹرول ہو، جس کے اوپر بھی اضافہ ہوا ہے اصولاً تو نہیں کرنا چاہیے، ان کو کم کرنا چاہیے۔ غریب آدمی کیا کرے گا، کمائے گا، کھائے گا، کیا کرے گا۔ حیدرآباد کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹر منمانہ اضافہ کر دیتے ہیں، جبکہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اس حوالے سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد۔ میئر میرپور خاص عبدالرؤف غوری نے سینٹرل جیل کا دورہ کیا۔ سینٹرل جیل کے مختلف سیل میں موجود قیدیوں سے ملاقات کی ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل جیل اشفاق احمد کلور نے میئر عبدالرؤف غوری کو سینٹرل جیل دورے کے موقع پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ میئر میرپور خاص عبدالرؤف غوری نے قیدیوں کو دیے جانے والے کھانے کا معیار بھی چیک کیا اور قیدیوں کو مختلف اقسام کے سکھائے جانے والے ہنر کے سینٹر کا بھی دورہ کیا اور بیرکس میں جا کر قیدیوں سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر میئر عبدالرؤف غوری نے قیدیوں سے ان کو ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ دورے کے موقع پر ایس ایس پی سینٹرل جیل میئر عبدالرؤف غوری کو جیل میں آنے والے درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جس پر میئر عبدالرؤف غوری نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر انیس الرحمان سیال، یو سی چیئرمین بھگوان داس، وائس چیئرمین دانش ارائیں، عبدالسلام میمن، اورنگزیب مغل سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ فیصل آباد میں محرم الحرام شہریوں کو فوری طبی مدد فراہم کرنے کے لیے ریسکیو اور محکمہ صحت نے مؤثر انتظامات کر رکھے ہیں۔ مرکزی جلوسوں کے راستوں پر میڈیکل ٹیمیں ہمہ وقت موجود ہیں۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر محرم الحرام کے دوران ممکنہ طبی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت فیصل آباد نے جامع اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ جالس اور جلوسوں کے دوران موبائل کلینکس میں ریسکیو اور محکمہ صحت کا تربیت یافتہ عملہ تعینات ہے تاکہ بر وقت طبی امداد یقینی بنائی جا سکے۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے پورے جو ڈسٹرکٹ کا ہے نا، وہ ہمارے ڈی او اور ہمارے افسران اعلیٰ نے ایک پلان دیا ہوتا ہے، اس کے مطابق جدھر جدھر کوئی مجالس وغیرہ اور یہ جلوس وغیرہ ہوتے ہیں تو ادھر ہماری ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور ہم اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ 7 محرم سے عاشورہ تک گھنٹہ گھر اور دیگر مرکزی راستوں پر ان موبائل پوسٹوں کو خصوصی طور پر متحرک رکھا جائے گا۔ ہم محکمہ صحت کی جانب سے جو ہے نا یہاں تعینات کی گئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو محرم کے جلوس کے میڈیکل کوریج کے لیے فراہم کی گئی ہے، جس میں ایک ڈاکٹر اور 2 پیرامیڈک سٹاف ساتھ ہوتے ہیں
تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت میں عوام کو جو ہے وہ طبی سہولیات باہم پہنچائی جا سکیں۔ گھنٹہ گھر میں قائم مرکزی کنٹرول روم کے ساتھ ساتھ جلوسوں کے راستوں پر میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف شہریوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے۔ محرم الحرام کے دوران حکومت پنجاب اور متعلقہ اداروں کی جانب سے طبی سہولیات کی فراہمی کا یہ سلسلہ عوامی خدمت کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ دادو میں انٹر جماعت طالب علم ذاکر جمالی کے قتل کیس میں ملزمان کی عدم گرفتاری پر ورثاء سراپا احتجاج بن گئے۔ طالب علم کے لواحقین کا احتجاجی ریلی نکال کر پریس کلب کے سامنے دھرنا۔ مقتول کے ورثاء نے کیس میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری تک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں دادو سے نمائندہ 5 نیوز اللہ بخش۔ ذاکر جمالی اس کے قتل کیس کے ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف جو ہے آج ورثاء کی جانب سے SSP دادو کے دفتر سے پیدل مارچ کا انعقاد کر کے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں لواحقین ہمارے ساتھ موجود ہے، کیس سے متعلق ان کی کیا تشویش ہے؟ جی تقریباً 40 دن پہلے SSP چونک دادو پہ سریعام جو ہے ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام ذاکر جمالی تھا، اس کا ایک بائک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے 4-5 بندے دوسرے منگوا کے اور اس پہ تشدد کیا تقریباً آدھے گھنٹے تک، اور اس تشدد میں ان کے پاس ہتھیار بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس PVC وائر بھی تھی، ان کے پاس پسٹل بھی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم میں سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ ویڈیو پڑھیے۔ ان کے چہرے بھی کلیئر ہیں، ان کے فیس بھی ظاہر ہیں، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ایک بندہ بھی انہوں نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ اس پولیس نے آج تک جو مین جوابدار ہے شہید ذاکر جمالی کے کیس میں اس کو اریسٹ نہیں کیا ہے۔ ہمارا SSP دادو DIG حیدرآباد سے یہ مطالبہ ہے تو فی الفور شہید ذاکر جمالی کے مین جوابدار کو گرفتار کیا جائے، اور ذاکر جمالی کا چھوٹا بھائی ہے جو ایکس کیڈٹ ہے، کیڈٹ کا اسٹوڈنٹ ہے اور لاء کا 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے حیدرآباد لاء کالج میں پڑھتا ہے۔ ایک مخالفوں نے ایک جھوٹی FIR داخل کرا کے بابر جمالی کو لاء کے اسٹوڈنٹ کو گرفتار کرایا گیا ہے، تاکہ اس لیے کہ وہ ان کو پریشرائز کر کے ان کے کیس سے دستبردار کرایا جائے۔ لواحقین کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو کیس میں مطلوب ملزمان ہیں دادو پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جس کو جو گرفتار کیا جائے۔ ورثاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا ایک طالب علم ہے کیڈٹ کالج کا، اس کو بھی جو ہے جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، اس کی جو ہے شفاف تحقیقات کی جائے۔ اعلیٰ بخش، نمائندہ 5 نیوز دادو۔ عشرہ محرم الحرام کے دوران شہر خاموشہ میں بھی رونقیں آ گئی ہیں۔ بچے، نوجوان، بزرگ، خواتین بڑی تعداد میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور پھول نشاور کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں خانپور سے سلیم مغل کی یہ رپورٹ۔ محرم الحرام میں مسلمان جہاں شہدائے کربلا کے دین اسلام کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہی منو مٹی تلے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری کے لیے شہر خاموشہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے ان سے بچھڑنے والوں کی قبروں پر حاضری کے ساتھ ساتھ ان کے اصل ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہماری آباء و اجداد کی قبریں ہیں۔ ویسے تو ہم روٹین میں آتے رہتے ہیں، مگر محرم الحرام میں ہمیں زیادہ تر آتے ہیں تاکہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو بہتر طریقے سے صاف کر سکیں اور انہیں قرآن خوانی اور فاتحہ پڑھ کے ان کو بخش سکیں۔ پیاروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پھول نشاور کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے بے شمار دعائیں کرتے ہیں، تو اس سے دل کو بے حد سکون ملتا ہے۔ ہم محرم الحرام میں آتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے۔ جو محرم کے مہینے ہوتے ہیں یا فاتح کربلا کے جو شہدائے کربلا کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہم آتے ہیں، لپائی وغیرہ کرتے ہیں قبروں کی اور فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھول نچاور کرتے ہیں، اصالہ ثواب کے لیے ان کی دعا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر اپنے پاپا کے ساتھ قبرستان آیا ہوں، اپنی دادی اماں کی قبر پر۔ یہاں پر ہم نے پھول نچاور کرے ہیں اور فاتحہ خوانی کری ہے۔ شہر خاموشہ میں اپنے پیارے بچھڑنے والوں کی روح کو احسال ثواب کے لیے شہریوں نے فاتح خوانی کی، ان کی قبروں پر پھول نچھاور کیے اور قبروں کی لپائی کا جائزہ بھی لیا۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والے شہریوں کی آنکھیں بھی نم تھی۔ ان کا یہی بتانا تھا کہ محرم الحرام میں شہداء کربلا کی نسبت سے یہاں پر آتے ہیں، اپنے پیاروں کی قبر فاتح خوانی کرتے ہیں اور پھول نچھاور کرتے ہیں، جس سے ان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خانپور۔
जड़ावाला में मुहर्रम अल हराम बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से देखते हैं जड़ावाला से अपने ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर की ये रिपोर्ट। जड़ावाला में भी 6 मुहर्रम हराम बड़ी क़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर की इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। मर्द और ख़वातीन मजालिस सुनने के लिए इमाम बारगाहों और घरों में मौजूद हैं। अज़ादार ज़ाकिरीन को सुनने में मसरूफ़ और अज़ादारी और नोहा खानी कर रहे हैं। ज़ाकिर जो है अपने तर्ज में कसीदा पढ़ते हैं, आलम बहुत अच्छे बयान देते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं उसको। और यहाँ पे हर साल जो है फिर इख्तिताम मजलिस पे अलम पाक का जो शबीह अलम पाक वो बरामद की जाती है। उसके बाद ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पे होते हुए इमाम बारगाह पे इख्तिताम पजीर होता है। 25 साल तो ड्यूटी दे रहे हैं असलम दी। मैं बाबर अली भालो नोहे खान बोल रहे हैं। 50 साल तो साइयां की ड्यूटी दी है, उन्हें भी ड्यूटी दे रहे हैं। अज़ादारों का कहना है कि शोहदा करबला की यादों को ताज़ा करने के लिए मजालिस और जुलूसों का इनकाद कर रहे हैं। ये आज़ादारी हो रही है, जो जुलूस अपना होता माँ बार का जाएगा। माँ बार ने गाजीबाद सलाम दादा अलम बलामत होता। सभी दोस्त जो हैं पुलिस वाले हमसे तावन कर रहे हैं, एसपी साहब भी तावन कर रहे हैं। और ये यहाँ से अलम बरामद होगा मौला का और इमाम बारगाह तक जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन इकराम मलक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़ जड़ावाला। खानेवाल में 6 मुहर्रम अल हराम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ लाहौर मोड़ इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खार की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। या मौला या मेरे मौला अपने दिल से माना है। खानेवाल में 6 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया 11 ब्लॉक से बरामद हुआ, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कबूतर चौक, कुली बाजार, मिलाद मुस्तफा चौक से होता हुआ कलमा चौक, जारी बाजार और अजूब रोड पर पहुंचा। ज़ाराइन ने नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस दोबारा अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैन चौक, लाहौर मोड़ इमाम बारगाह पर इफ्तिताह पजीर होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 550 एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें एलियट फोर्स, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नौजवान अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन मरकजी जुलूस है जो हमारी इमाम बारगाह ब्लॉक 11 से शुरू होगा। ये आलमोस्ट 4 किलोमीटर का रूट है और इसमें आप इसका वॉल्यूम ये देखें कि 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं इस रोड के ऊपर आती हैं। वो एक दुकान से छोटी बॉन्ड ले गए। 550 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं और सारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं। इंशाल्लाह ये शाम को 4:30 बजे अल्लाह पाक की दुआ, अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह खैर कर सकें। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की जानिब से जुलूस के रास्तों पर ठंडा पानी का छिड़काव किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से जुलूस की गुजरगाहों पर ठंडे और मीठे पानी की छबीलें लगाई गई। जी आज 6 मुहर्रम का खानेवाल का मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है। यहाँ पर DPO साहब भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। कल रात को भी हमने यहाँ पर विज़िट किया, तमाम इंतजाम का जायज़ा लिया है। इस वक्त हमारी तमाम टीम्स यहाँ पर डिप्यूटेड हैं, वापटा भी मौजूद है, SNGPL भी है, ज़िला काउंसिल और MC के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम पैचिंग हो चुकी है, तमाम रूट को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। इंतजाम हमारे यहाँ पर मुकम्मल हैं, सबीलें भी यहाँ पर लग चुकी हैं, फूड अथॉरिटी उनको चेक कर चुकी है एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये 4:30 बजे खैरियत से काम हो। 6 मुहर्रम उल हराम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर पुलिस के नौजवान नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की जानिब से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पानी की छबीलें लगी हुई हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़ खानेवाल। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी इक़दामात का सिलसिला जारी है। सरगोदा की 7 तहसीलों में पानी की सबीलें कायम कर दी गई हैं और महकमे सेहत और दीगर इदारों को यौमिया बुनियादों पर पानी के मयार और सफाई की जांच का पाबंद बना दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवीद से। जी अशर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारी जुलूस में शिरकत करने वाले और मजालिस के जो है शुरका के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से पानी की सबीलें लगा दी गई हैं। सरगोदा की 7 तहसीलों सरगोदा, कोट मोमन, बुरवाल, भेरा, सिलावाली, शाहपुर और साहिवाल में मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से
सबीलों को फंक्शनल कर दिया गया है। यहाँ पर साफ़ और फ़िल्टर शुदा पानी फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से मुकामी इंतज़ामिया ने महकमा सेहत और कॉरपोरेशन इदारों को सख्त अहकामात जारी किए हैं कि इन जो है ये जहाँ जो पानी फराहम किया जा रहा है उसकी क्वालिटी का मेयार बेहतर बनाया जाए। इसके साथ साथ ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग सबीलें कायम की गई हैं। उनके लिए बैठने के लिए सायादार जगहों का भी इंतज़ाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम का कहना है कि यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बाकी जो जुलूस होंगे उनकी गुज़रगाहों पर भी साफ़ पानी की फराहमी के लिए सबीलों का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो जुलूस में शामिल होने वालों की सिक्योरिटी के हवाले से वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर और दीगर जो है वो SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से भरपूर, मुतहर्रिक और मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही है। बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के अहकामात पर के जो सबीलें लगाई गई हैं इससे आवाम को हकीकी मानों में फ़ायदा पहुँच रहा है। जी। सांगला हिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया है। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड तामीर हो जाने के बावजूद भी मरीजों के लिए नहीं खोली जा सकी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं मियां जिया जी। मियां जिया जी, क्या तफसीलात हैं? तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल की एमरजेंसी जो कि 20 बेड पर मुश्तमिल थी, खस्ता हाल बिल्डिंग करार देकर उसको बंद कर दिया गया। बाद में इस एमरजेंसी को हॉस्पिटल की मर्दाना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पे 8 बेड लगाए गए हैं। इतनी बड़ी आबादी में ये 8 बेड नाकाफ़ी हैं, जिससे लोग इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। लोगों का ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से और सेक्रेटरी हेल्थ से कि ये जो पहली 20 बेड वाली एमरजेंसी थी उसकी ताज़ीन और आइश हो चुकी है, उसको जल्द से जल्द दोबारा फाल किया जाए ताकि लोगों को सहूलियात मैसर आ सके और मरीज जो है परेशानी से बच सकें। जी। में भी मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में 121 मजालिस और 84 जुलूस निकाले जाएंगे। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से शेख अदनान खालिद से। जी शेख अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, मुजफ्फरगढ़ में भी मुहर्रम अल हराम के हवाले से मजालिस और जो जुलूस का सिलसिला जारी है। तकरीबन 121 के करीब जो मजालिस का इनकाद किया जा रहा है, साथ साथ जो 81 जो है जुलूस बरामद किए जाएंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से जो बात की जाए तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। जो मजालिस के जो इमाम बारगाहों के बाहर जो मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट नस्ब किया गया और साथ साथ 100,000 से ज़ायद जो है कैमरे भी मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ ज़िला भर में 3,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और अगर सफाई के हवाले से बात की जाए तो जो भी इमाम बारगाह के करीब के रास्ते हैं उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट किया जा रहा है ताकि अज़ादार जो है वो आसानी के साथ अपने इमाम बारगाहों में जा सके। और इसके साथ साथ जो है सबीलें भी लगाई गई है ताकि ठंडे पानी का जो है ना तसलसल जारी रहे। जी। तफसीलात के लिए शुक्रिया शेख अदनान। आगे बढ़े और बात करेंगे कसूर में मानसून बारिशों के बाद दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, लेकिन खतरात बढ़ने के बावजूद एहतियाती तदबीर को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। दरिया की सतह बुलंद होने के बावजूद शहरी बगैर लाइफ जैकेट्स के कश्तियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से नाफिज की गई दफा 144 की खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त दरिया सतलुज बक्खी विंड के मकाम पर मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं सब मौजूद हूँ कसूर दरिया सतलुज जो बिक्की विंड के मुकाम पर। मैं आपको बताता चलूँ कि चंद माह पहले की अगर बात की जाए सिंध ताश मुआहदा पर भारत की तरफ से पानी बंद करने पर तो ये दरिया सतलुज बिल्कुल सूख चुका था, लेकिन हालिया बारिशों और रोही नालों के पानी की वजह से आज जो है दरिया सतलुज पर जो है पानी दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ रहा है। और इस वक्त अगर इसकी बात की तो इलाका मकीनों के मुताबिक इसकी जो गहराई है वो 10 से 11 फुट तक इस वक्त जो दरिया सतलुज में पानी का जो है ना
बहाव वो चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ सनहा जो स्वात है उस हादसे के बाद जो है ना जो डीजी पीडीएम है उसकी तरफ से एक मरासला जारी किया गया तमाम डिप्टी कमिश्नर को कि तमाम जो रास्ते हैं बूट्स के ज़रिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो आफास्ती जैकेट्स हैं उसका इस्तेमाल जो है ना और ओवरलोडिंग जो है वो कश्तियों पर नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखने में यही आ रहा है कि लोग यहाँ पर जो है ना बगैर किसी हिफाजती जैकेट्स के और ओवरलोडिंग के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर कश्तियों पर जाने पर वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी इन दफ़ा 144 की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। जबकि दूसरी तरफ इलाका मकीनों का यही कहना है कि पानी की सतह में जो इजाफा होता नज़र आ रही है, ये मज़ीद बारिशें अगर ज़्यादा होती हैं तो इसमें मज़ीद इजाफा जो है ना वो दरिया सतलुज में हो जाएगा। जी। शेखोपुरा में मुमकिना सिविल डिफेंस के ज़ेरे एहतमाम मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिविल डिफेंस ऑफिस में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खालिद शहजाद ऐवान ने की। इजलास में तमाम अहलकारों को मुहर्रमुल हराम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहराज सिंधु। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेरे एहतमाम मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें जो है मुहर्रमुल हराम पर ड्यूटी पर तैनात अहलकारों के हवाले से क्या इकदाम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, बताइए क्या इकदाम है, कितने अहलकार जो है मुहर्रम के दौरान ड्यूटी देंगे? जी सिविल डिफेंस ऑफिस शेखुपुरा इस मुहर्रमुल हराम में अल्हम्दुलिल्लाह 300 से प्लस वॉलंटियर्स हमारे ज़िला इंतज़ामिया को दे रहा है सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए। इसमें तमाम तहसीलें भी शामिल हैं और हमारा मरकज़ भी शामिल है। जी। अच्छा सर, यौम शुरा के ऊपर क्या इकदाम कर रहे हैं आप? सर हमारी ड्यूटी ये होती है कि हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देते हैं। बम डिस्पोजल स्टाफ हमारा अलर्ट रहता है और वही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है जिम्मेदारी वो हम पूरी कर रहे हैं, हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि 300 से ज़्यादा जो अहलकार जो है वो यौम शुरा और तमाम मुहर्रम के दौरान जो है ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और ये अपनी ड्यूटी को जो ऐसे तरीके के साथ सरअंजाम देते रहेंगे। जी। लीची एक सेहतमंद, मीठा और खुश जायका फल है। इसके 3 इक़साम हैं, बदाना, गोला और सहराई। सियालकोट के नवाही गांव गोंदल में एशिया का सबसे बड़ा बाग है, जो कि 124 एकड़ पर हजारों दरख्त लगे हुए हैं। सियालकोट की लीची पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी भिजवाई जाती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर एशिया के सबसे बड़े बाग गोंदल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एशिया के सबसे बड़े लीची के बाग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो सब्ज खजाना भी कहलाया जाता है। ये लीची का बाग ना सिर्फ दुनिया में मशहूर है बल्कि इसके 3 किस्म की लीची जो यहाँ से पाई जाती है, जिसमें सहराई लीची है और गोला लीची है और बदाना लीची है, जो मिठास में अपनी मिसाल आप है। इसके साथ जो ये बात करें बाग की, तो बाग का रकबा 5 जो है मुरब्बा किला से भी मोहित से फैला हुआ है। ये कदीमी सियालकोट के नवाही इलाका गोंदल में पाया जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाग कहलाता जाता है। मेरे साथ इस वक्त एक ठेकेदार, एक किसान मौजूद है जो लीची तोड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि लीची कितने किस्म की पाई जाती है। जी बताइएगा। 3 किस्म की लीची पाई जाती है, सराई, बनाना, गोला। 5 मरबे में बाग में 5 मरबा पूरा बाग है। कम से कम 400-500 मजदूर काम करता है इधर इस टाइम। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है कि ये जो लीची है ये खूबसूरत लीची है, जो कुदरती खजाना है, सब्ज ये खजाना है जो ना के सेहत बख्श है और बल्कि इसका जो खुशगवार मीठा जायका है वो दिल को तस्कीन पहुंचाता है। जी। वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ती कीमतों के बाइस अवाम परेशान। अवाम ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फरुल्लाह चौधरी। जी ज़फरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात की तारीकी में जो वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। पहले ही मुल्क बहरानों का शिकार है, बिल्कुल कारोबार बंद होकर रह गए हैं और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अब पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है और अगर पेट्रोल की मौजूदा कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 267 रुपये तक जा चुकी है। और अगर बात की जाए
डीजल की कीमत की तो 10 रुपये से कुछ पैसे बढ़ाकर इसकी कीमत जो है 276 रुपये फी लीटर कर दी गई है, जो कि अवाम की पहुंच से दूर है। अवाम का कहना है कि फौरी तौर पर ये फैसले वापस लिए जाएँ। मैं शहरी से बात करूँगा यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए। सर आप बताएँ कि ये जो इतना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे? भाईजान कारोबार पहले ही नहीं है, ये हुकूमत हमारे ऊपर बोझ डाल रही है। 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है, डीजल 8 रुपये लीटर बढ़ा दिया है, कारोबार है नहीं, हमारे ऊपर बोझ पे बोझ आ रहा है। मेहरबानी करके हुकूमत के आगे अपील है कि इसे वापस लिया जाए, कम किया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि पहले ही कारोबार बंद होकर रह गए हैं, पहले ही एक वक्त की रोटी कमाने से कासर हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन भागना पड़ता है, लेकिन कारोबार ना होने की वजह से बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। अब हुकूमत की तरफ से एक पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, ये बम हमसे बर्दाश्त नहीं होता। फौरी तौर पर हुकूमत जो है ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी भी एक वक्त की रोटी खा सके। जी शहादाए करबला की याद में हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सालाना 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से आपके वालिदैन के मज़ार दरबार माई बाप में सालाना गुस्ल की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रियाज गुज्जर, साबिक ज़िला नाज़िम जंग साहबजादा सुल्तान हमीद साहबजादा, अमीर सुल्तान साहबजादा मुनीब सुल्तान ने शिरकत की है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अब्बा आबिद हुसैन से। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। बड़े सगीर पाक हिंद के बुत कदों में अजान हक देने और इस्लाम की शम्मा रोशन करने में सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का नाम नुमाया नज़र आता है। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आपके मज़ारात पर सालाना शहदाए करबला की याद में 10 रोज़ा तकरीबात का इनकाद हो रहा है। तकरीबात जारी हैं। आज इसी हवाले से आपके वालिदैन के मज़ारात जो कि शोरकोट शहर में मौजूद हैं, उन पर गुस्ल की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें साहबजादान की भी तादाद मौजूद थी। इस वक्त साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान MNA साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब, यकीनन शहदाए करबला की याद में ये तकरीबात का इनकाद हो रहा है, इस मौके पर आप क्या पैगाम दें? मेरा पैगाम जी वही शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को लेकर ही है कि इंसान को हमेशा खुदा के ऊपर यकीन और अपना ईमान पुख्ता रखना चाहिए। उन्होंने भी अपने ईमान के पीछे, खुदा पर पक्के यकीन के पीछे, रसूल करीम की मोहब्बत के पीछे उनके लिए दुनिया बनी है और हम तो उनके खाक के गुलाम हैं। अपने जान भी देनी पड़ जाए, बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ जाए, तो अपने ईमान का सौदा नहीं करना। साहबजादा साहब, यकीनन सुल्तानुल आरिफीन ने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है, उनके हवाले से आपका क्या पैगाम? सुल्तानुल आरिफीन का मोहब्बत का पैगाम है कि जी सब्र, और सब मुसलमान भाई सब्र से काम लें, प्यार से काम लें, अमन से काम लें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, दरगुजर किया करें चीज़ों को। दरगुजर करना खुदा की नज़र में भी बहुत बड़ी कुर्बानी है और बहुत बड़ा सिला है इस चीज़ का। आप एक चीज़ शायद किसी इंसान की दरगुजर करेंगे, अल्लाह ताला उसके बदले में आपको 10 नेकियां अता फरमाएगा और 10 जगहों से ऐसी ऐसी रास्ते आपके लिए खोलेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यकीनन मुल्क के तूल अर्ज़ से ज़ायरीन की एक कसीर तादाद आपके मज़ारात पर सलाम अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं और पैगाम यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के तपते हुए सहरा में एक पैगाम दिया कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो वो कभी हक पे गालिब नहीं आ सकता। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खान की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी। मुहर्रम उल हराम में जिला भर में 196 जुलूस और 136 मजालिस और सिक्योरिटी ड्यूटी में 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से मुहर्रम उल हराम में अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। तो बात करते हैं DPO खानेवाल इस्माइल खाड़े साहब। तय कि वज़ीर पंजाब की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया, कितने मजालिस और कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा की हिदायत हैं कि मुहर्रम फुल प्रूफ, मुहर्रम के जो सारे प्रोग्राम हैं मजालिस और जुलूस, इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। मैं ये बताता चलूँ कि खानेवाल में 200 के करीब जुलूस हैं और 1100 के करीब मजालिस हैं आलमोस्ट। इनमें 17 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स और जवान हैं और इसमें ट्रैफिक पुलिस के अलग से 150 के करीब ऑफिसर्स हैं। पुलिस का हर सेगमेंट, हर सेक्शन इसमें एक्टिव है। दिन और रात 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी फील्ड में है, सारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं। हम इंशाल्लाह, हमारी भरपूर कोशिश है कि मुहर्रम के प्रोग्राम खैर खैरियत से और अमन अमान से गुजरें।
और ये मैं बताता चलूँ कि पीस कमेटी और लोकल जो अवाम है उनकी बहुत बड़ा रोल है खानेवाल में पीस रखने में और मुहर्रम के मामलात में अपना पीसफुल किरदार अदा करने में। इस दफ़ा भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माजी की तरह खानेवाल में इस दफ़ा ही मुहर्रम बड़ा खैर खैर से गुजरेगा। जी, आपने बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस इस्माइल खाड़ का ये कहना था कि 6 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के नौजवान भी हर जगह तैनात। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का दौरा। कमिश्नर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी सेक्टर शहर को खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करके हाई कोर्ट बार ने अपनी मदद आप के तहत फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया। हाई कोर्ट बार के सदर अजहर मुगल का कहना था बार की खूबसूरती के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वकला की सहूलत के साथ साथ आवाम को साफ पानी की फराहमी भी अहम है। हाईकोर्ट बार ने ब्यूटिफिकेशन के लिए कमिश्नर मुल्तान के ताउन को सराहा और कमिश्नर मुल्तान की सपोर्ट पर इज़हार तशक्कुर पेश किया। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलोग्राम से जायद आइस बरामद कर ली है। कार्रवाई एसएचओ मोहम्मद असलम भट्टी की सरबराही में अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नवीद जुबस्ती का रिहायशी है। तवील अरसे से शहर में आइस फरोख्त करने के मकरूह धंधे में मुलविस था। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की आइस बरामद की गई है, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात नवीद अहमद ने सिविल अस्पताल जलालपुर जट्टा और जेरे तामीर ट्रामा सेंटर जलालपुर जट्टा का दौरा किया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अताउल मनम भी उनके हमरा थे, जिन्होंने ट्रामा सेंटर के तामीराती मराहिल और मौजूदा पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, मेडिकल स्टोर और लेबॉर्ट्रीज का दौरा किया और वहां दाखिल मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों से फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी और अमले के रवैये से मुतालिक दरियाफ्त किया। ज़ेरे तामीर ट्रामा सेंटर के मुआयने के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने काम के मयार और रफ्तार का जायजा लिया और तामीराती टीम को हिदायत की कि मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जदीद सहूलियात से आरास्ता एमरजेंसी सर्विसेज जल्द मुयस्सर आ सकें। रहीम जियार खान में मुजरे सेहत अचार तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। 250 किलो अचार और 10 लीटर सिरका बरामद करके मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने अचार मालिकान को 40,000 का जुर्माना भी आयद कर दिया है। फूड सेफ्टी टीम ने बताया कि इस्लामिया कॉलोनी में अचार यूनिट पर पाबंदी लगे अचार को केमिकल्स ड्रम्स में स्टोर किया गया था। अचार की तैयारी में नॉन फूड ग्रेड सिरका, मिलावटी मसालों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खुराक के नाम पर जहर तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब भर में सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। खबर आपको दें कि खैरपुर नाथन शाह फील्ड प्रोटेक्शन कमेटी के ज़ेरे रहनुमाओं के कहना है कि तबाहकुन सैलाब को 3 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद काली मोरी के करीब से मलबा हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। खबर आप तक पहुंचाएं कि खैरपुर नाथन शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फील्ड प्रोटेक्शन कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि सुप्रियोदो बंद, खुदावादा और बचाव बंद तबाह हो चुके हैं और उनकी बरवक्त मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है। बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया खामोश है, जिसके खिलाफ हमने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और जब तक बंदों की मजबूती का काम शुरू नहीं होता अवामी मुहिम भी चलाई जाएंगी और एहतजाज शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर वकील सैयद लाल शाह, हाफिज अनवर और सेठ फ़कीर मोहम्मद शेख, शुबान अली मल्ला, फ़कीर अली हसन, कॉमरेड गुलाम और मोहम्मद गाढ़ी भी मौजूद थे।
SSP नौशहरों फिरोज बशीर बरूही की क़यादत में मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से महराब पूट समेत जिला भर में फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च में तमाम तहसीलों के DSPs, SHOs और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। खबर आप तक पहुंचाएं कि SSP नौशहरों फिरोज बशीर बरूही ने मजालिस और इमाम बारगाहों से निकलने वाले जुलूसों की मुतालिक तफसीलात ली और जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात करके इंतज़ामी मामलात के मुतालिक मालूमात ली। SSP ने तमाम SHOs को मजालिस और मुहर्रम आशूरा पर निकलने वाले जुलूस पर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त रखने की हिदायत की और कहा कि जिला भर में तमाम इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रखे गए हैं। SSP बशीर बरूही का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी मामलात पर जिला भर में कहीं भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर दें कि गुजरांवाला में अमीनाबाद में मुबैना तौर पर जहरीला खाने से जाँ बहाक 2 बहनों का भाई भी चल बसा। पुलिस ज़राए के मुताबिक 8 साला हैदर भी अस्पताल में दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज़ 7 साला नूर फातिमा और 4 साला जन्नत दम तोड़ गई थी। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने बेटी की सालगिरह की तकरीब के लिए मकामी फूड पॉइंट से खाना और केक मंगवाया था। खाना खाने के कुछ घंटे बाद नवीद पहलवान और बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। पहले नवीद पहलवान की बेटी नूर फातिमा, फिर जन्नत और अब बेटा हैदर भी दम तोड़ गया। अहमदाबाद पुलिस ने 7 फूड पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रात फूड पॉइंट्स को सील कर दिया। अहमदाबाद पुलिस ने 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी आज 6 मुहर्रम उल हराम की शब को इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजालिस का सिलसिला आज सुबह से जारी है। आज़ादार मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मजालिस सुनने के लिए इमाम बारगाह इमामिया में मौजूद हैं। आज़ादारों के लिए ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन समेत रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। खबर आपको दें कि SSP हसन सरदार नियाज़ी के अहकामात पर मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मुहर्रम को खैरपुर पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च किया ताकि आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया जा सके। फ्लैग मार्च की क़यादत DSP सिटी असदुल्ला भट्टी और इंचार्ज DIB अलीगुल मल्ला ने की है। मार्च मरियम तोप चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात से होता हुआ वापस तोप चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। SSP के मुताबिक मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। जुलूस रूट्स पर CCTV कैमरे और बुलंद इमारतों पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। रिनाला खुर्द के नवाही इलाके में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। रिनाला खुर्द थाना शेरगढ़ की हुदूद में खावन के हाथों बीवी कत्ल। मुश्ताक ने घरेलू नाचाकी पर कुल्हाड़ियों के वार से अपनी बीवी को कत्ल कर डाला। मकतूला की शनाख्त कौसर बीबी के नाम से हुई है। पुलिस थाना शेरगढ़ ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। DPO ओकाड़ा का कहना है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। खबर दें कि ओकाड़ा B डिवीजन के हुदूद में कायम सुपर स्टोर में डाकुओं की लूटमार। 5 न्यूज़ ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है जिसमें डाकू वारदात करते हुए देखे जा सकते हैं। खबर आप तक पहुंचाएंगे थाना B डिवीजन ओकाड़ा की हुदूद में वाक़ सुपर स्टोर में डकैती की वारदात। 2 नामालूम मुसल्लह डाकू असले के जोर पर सुपर स्टोर में दाखिल हुए। डाकू ने अमला और कस्टमर को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर मुलजमान से 1.5 लाख रुपए से ज़ायद की नकदी रकम लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात की CCTV फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में डाकू को लूट मार करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस वारदात की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत पर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी, ताहाल मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके।
ملتان وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی ہدایت پر ملتان ڈویژن میں تحصیل کی سطح پر 13 کسان سہولت سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں کاشتکاروں کو ایک ہی چھت تلے معیاری پیسٹی سائیڈز اور اسپرے مشینری رعایتی قیمت پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ موقع پر کاشتکاروں کو کپاس کی فصل کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشاورتی کاؤنٹرز پر رہنمائی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ خبر دیں کہ گجرانوالہ میں مبینہ زہریلا کھانا کھانے سے 3 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈائریکٹر آپریشنز کی گجرانوالہ آمد موڑ امین آباد میں سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ خبر دیں کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اور فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ متعدد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 3 فوڈ پوائنٹس بند، 6 کو بھاری مقدار میں جرمانے عائد، ایکسپائرڈ اور غیر معیاری اشیاء تل، فوڈ پوائنٹس پر صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات اور سنگین خلاف ورزیاں پائی گئیں۔ فرائنگ کے لیے رینسڈ آئل استعمال کیا جا رہا تھا، آئل تبدیلی سمیت دیگر اہم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا۔ ڈائریکٹر آپریشنز نے ہسپتال میں لواحقین سے ملاقات اور اظہار تعزیت کی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سخت ہدایات پر واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے محدود وسائل کے باوجود مؤثر کارروائیاں جاری ہیں، ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے۔ پتوکی کے علاقہ ہنجرائے کلاگ میں 18 سالہ نوجوان کی لاش فصلوں سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش کی شناخت 18 سالہ مہتاب کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق نوجوان کی موت تیز دھار آلے سے گلے پر وار سے ہوئی ہے۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی لاش کو ریسکیو کے بعد مدد سے پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جڑانوالہ بازار میں قائم کلیکشن سینٹر پر مقصود نامی شخص بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم سے 1000 سے 2000 روپے کٹوتی کرنے لگا۔ خواتین سخت گرمی میں پریشان ہونے لگی۔ رقم کے حصول کے آنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ پیسے نہ دینے کی صورت میں کلیکشن سینٹر پر موجود شخص خواتین کو دھکے اور گالیاں دیتا ہے۔ متاثرہ خواتین نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کٹوتی پر چلنے والے کلیکشن سینٹرز کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاک پتن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات اپنے عروج کو پہنچ گئی ہیں۔ عرس بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی طرف سے پاکستان سے سجادہ نشین سید فرحان نظامی نے چادر پیش کی۔ اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا پیر خانہ ہے جو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر الدین پاک گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر حضرت محبوب پاک متواتر 3 سال آتے رہے اور آپ نے 3 سال آ کے ایک حافظوں کی ٹیم پوری لے کر آئے جو قرآن مجید فرقان حمید ایک ایک اینٹ پہ دم کرتے تھے اور رکھتے تھے۔ یہ عشق بتایا گیا ایک پیر سے، ایک مرید سے پیر کا جو، اور یہاں تمام جو رسومات ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ہوتی ہیں جو 783 سال سے ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہوتی رہیں گی۔ میں دعا گو ہوں ملک پاکستان کی، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ان بزرگان دین نے جوڑنے کا کام کیا ہے، محبت کی بات کی ہے اور انہوں نے توڑنے کا کام کیا ہے۔ یہ جو ہے امن کے مراکز ہیں، جتنے بھی تمام خانقاہیں اور خانقاہوں سے یہ درد ہمیشہ جاری رہے گا۔ عرس بابا فرید کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی قفل کشائی 5 محرم الحرام کی شب ادا کی جائے گی۔ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ سجادہ نشین دربار عالیہ دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی نے سینکڑوں سجادگان کے ہمراہ قیمتی رسومات ادا کر کے بہشتی دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا ہے۔ اس موقع پر شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ قفل کشائی کے بعد روایتی تبرکات تقسیم کیے گئے جبکہ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں کی شرکت زائرین حق فرید یا فرید کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بہشتی دروازے گزرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دربار سمیت شہر بھر کو خوبصورت رنگ برنگی برقی قمقموں کے ساتھ ساتھ دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ بہشتی دروازہ اذان فجر تک کھلا رہے گا جس میں لاکھوں زائرین بہشتی دروازے سے گزر کے عرس کی رسومات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہے گی۔